السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلام آباد عالمی امن کے لیے انتہائی اہم اور تاریخی مذاکرات کی میزبانی کو تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج فرانس اور نیدرلینڈز کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے اسلام آباد مذاکرات میں شریک ممالک کے مندوبین اور صحافیوں کو ویزے کے بغیر سفر کی سہولت فراہم کی ہے۔ پاک بحریہ نے شمالی بحر عرب میں ایک تجارتی بحری جہاز کے عملے کے 18 ارکان کو بحفاظت بچا لیا ہے۔ 1973 میں ملکی آئین کی منظوری کی یاد میں آج پاکستان میں یوم آئین منایا جا رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے خواتین اور بچوں کو آن لائن ہراسانی کے واقعات سے بچانے کے لیے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دی ہے۔ سالانہ ویساکھی میلے میں شرکت کے لیے سکھ یاتری واہگہ بارڈر کے ذریعے بھارت سے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے 10 ارب روپے مالیت کے کراچی سیف سٹی منصوبے کے دوسرے مرحلے کی منظوری دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی قابض انتظامیہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 303 ہو گئی ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور راولپنڈیز کے درمیان میچ کراچی میں جاری ہے۔ خاص خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات کے تناظر میں پاکستان اس وقت عالمی سطح پر مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ اس اہم سفارتی پیش رفت کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اہم عالمی رہنماؤں کی جانب سے کئی ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ قطر کے امیر، بحرین کے شاہ، لبنان اور اٹلی کے وزرائے اعظم اور آسٹریا اور جرمنی کے چانسلرز نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ عالمی رہنماؤں نے گفتگو کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے حصول میں کلیدی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی۔ فخر، جوش اور ولولے سے بھرپور اسلام آباد عالمی امن کے لیے انتہائی اہم اور تاریخی مذاکرات کی میزبانی کو تیار ہے۔ شہر میں انتہائی خوشی کا سماں ہے اور وہ امید نو کے جذبے سے سرشار ہے، جس سے پاکستان کی ثابت قدم، انتھک اور دانشمندانہ سفارتکاری کی کامیابی کی عکاسی ہوتی ہے۔ پورے دارالحکومت میں خیر مقدمی بینرز آویزاں ہیں، جن میں عالمی امن کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی قوم اور اس کی قیادت کے خلوص، عزم اور جوش اور ولولے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات پاکستانی قیادت کے اخلاص اور اصولی ویژن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے جس نے دنیا بھر میں پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ فرانس کی وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے ابتدائی معاہدے میں پاکستان کے کردار پر مبارکباد دی اور خطے میں دیرپا امن اور استحکام کی غرض سے سفارتی ذرائع کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا اور رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نیدرلینڈز کی وزیر خارجہ ٹام بیرنسن نے آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا۔ گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے میں
پاکستان کے کردار کو سراہا اور دیرپا امن کے لیے سفارتی طریقہ کار کو فروغ دینے کے لیے اس کی مسلسل کوششوں کی حمایت کی۔ فریقین نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے پائیدار امن کے لیے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان مضبوط تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے تجارت، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آنے والے وفود کی مہمان نوازی اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا اور صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس ضمن میں وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندراوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کرنے والے ممالک ایران اور امریکہ کے مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا فری سفر کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے ویزا فری سفر کی اجازت دینے کے پاکستان کے فیصلے سے متعلق صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سہولت بات چیت کے دورانیے کے لیے فراہم کی گئی ہے اور کسی تیسرے ملک کے شہریوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے ٹولام کو ویتنام کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے خط میں یقین ظاہر کیا کہ صدر ٹولام کی قیادت میں ویتنام مزید ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ انہوں نے پاکستان اور ویتنام کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے صدر ٹولام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے میانمار کے سینئر جنرل من اونگ ہیلنگ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں پاکستان اور میانمار کے درمیان خوشگوار تعلقات کو اجاگر کیا۔ صدر نے یقین ظاہر کیا کہ صدر من اونگ ہیلنگ کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے شعبوں میں باہمی فائدہ مند شراکت داری کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ پاکستان کی ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو حکومت پر سمندر پار پاکستانیوں کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق رواں سال مارچ کے مہینے میں ترسیلات زر 3.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں جو فروری کے مقابلے میں 17% زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں مجموعی ترسیلات زر 30.3 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا کہ موجودہ مالی سال میں ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الملک مقیم پاکستانی مسلسل ملکی معیشت کی ترقی اور مالی استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خرم شہزاد نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات کے باوجود ترسیلات زر کی آمد میں استحکام برقرار ہے اور مستقبل میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے پاکستان کے ساحل سے 200 ناٹیکل میل کے فاصلے پر شمالی بحیرہ عرب میں ہنگامی کال موصول ہونے کے بعد ایک تجارتی بحری جہاز سے عملے کے 18 ارکان کو بچا لیا ہے۔ عملے کے ارکان میں چین، بنگلہ دیش، میانمار، ویتنام اور انڈونیشیا کے شہری شامل تھے۔ پی این ایس ہنین نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا۔ ماہرین کی ٹیم نے جہاز کے عملے کو طبی امداد فراہم کی، آگ بجھانے میں مدد کی، نقصان کا تخمینہ لگایا اور عملے کو کامیابی سے بچایا۔ نکالے گئے عملے کو علاج، معالجے اور ان کے متعلقہ ممالک کو بحفاظت وطن واپسی کے لیے کراچی پہنچا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی بحیرہ عرب میں ہنگامی انسانی امدادی کارروائی کے دوران مختلف ممالک کے 18 افراد پر مشتمل عملے کو بحفاظت ریسکیو کرنے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، فوری رد عمل اور انسان دوستی کے جذبے کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرچنٹ ویسل گولڈ آئٹم سے موصول ہونے والی ہنگامی اطلاع پر پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ہنین نے فوری اور مؤثر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن میں مختلف ممالک بشمول چین، بنگلہ دیش، میانمار، ویتنام اور انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔
शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि तमाम अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उनकी अपने मुल्कों में वापसी के इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया अपनी जिम्मेदारी के दायरे कार में हर किस्म की बहरी हंगामी सूरत हाल में हमेशा अव्वलीन इमदादी इदारे के तौर पर किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान में 1973 में आज के दिन मुल्क के आइन की मंजूरी की याद में यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। ये दिन मुल्क में जमहूरी निज़ाम हुकूमत के क़याम की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आइन के मौके पर 1973 के आइन के मेमारों को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि 1973 में आज के दिन मंजूर किया गया पाकिस्तान का आइन हमारे मुल्क का मरकजी कानूनी और सियासी ढांचा है। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा है कि बराह रास्त मुंतखब पार्लियामेंट ने मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। सदर ने कहा कि 1973 के आइन के असल मेमार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है, जिनकी क़यादत ने हमारी तारीख के एक नाजुक मोड़ पर मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 1973 का आइन पाकिस्तान के तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का मुहाफ़िज़ है। उन्होंने कहा कि यह आइन विफाक़ी पाकिस्तान और कौमी यकजहती की रोशन अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ख़वातीन और बच्चों की ऑनलाइन हिरासानी और ब्लैक मेलिंग से निमटने के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लाहौर से हमारी नुमाइंदा जुनैरा खालिद से। ये फैसला आज लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले एक आला सतह के इजलास में किया गया, जिसमें साइबर क्राइम से निपटने के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि सोशल मीडिया जराइम में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं देने के लिए नई कानून साजी की जाएगी और पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 के मसवदे पर काम शुरू कर दिया गया है। इजलास में पंजाब पुलिस के तहत साइबर पेट्रोल विंग और साइबर पुलिस अकेडमी के क़याम का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि साइबर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पेश और मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए, जबकि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए जदीद इंटेलिजेंस निज़ाम भी कायम किया जाए। उन्होंने साइबर क्राइम से मुतालिक हसास डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात की जरूरत पर भी जोर दिया। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि साइबर क्राइम एक संगीन और बढ़ता हुआ मसला है और हुकूमत नई नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत से सिख यात्री सालाना विसाखी मेले और 327वें खालसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे हैं। मजीद तफसीलात रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतहर रसूल से। वाघा चेक पोस्ट पर भारतीय सिख यात्रियों का इस्तकबाल। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक हमरा किया। सूबाई वज़ीर ने यात्रियों को विसाखी मेले की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान बाबा गुरु नानक देव जी की मुकद्दस धरती है और यहाँ हर मजहब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद सिख यात्रियों को वीजा जारी किए गए हैं। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि सिख यात्रियों के क़याम, लंगर, ट्रांसपोर्ट और तिब्बी सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। भारतीय यात्रियों के जत्था लीडर सरदार सरजीत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और दुनिया भर के सिख यहाँ आना चाहते हैं। बाज़ यात्रियों को 3 मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में ननकाना साहिब रवाना किया गया, जहाँ यात्री 2 रोज क़याम के बाद गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल की जानिब रवाना होंगे, जहाँ वैसाखी मेला की मरकजी तकरीब इस माह की 14 तारीख को मुनक्किद होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आज कराची में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें 9 अरब 98 करोड़ रुपए की लागत से कराची सेफ सिटी मंसूबे के दूसरे मरहले की मंजूरी दी गई। इजलास को बताया गया कि दूसरे मरहले में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मजमूई तौर पर 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। यह मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा और अगले साल मई में इसका बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस मंसूबे से शहर में सिक्योरिटी, निगरानी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की किफायतशारी पॉलिसी के मुताबिक बाजार बंद करने के औकात कार जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात कराची से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे जावेद समीजो की इस रिपोर्ट में।
हुकूमत सिंध की जानिब से जारी एलामे के मुताबिक दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और दीगर कारोबारी मराकज के औकात कार फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। तमाम अजला में दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और दीगर कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बंदिश का वक्त रात 9 बजे मुकर्रर किया गया है। यह अहकामात हफ्ते के 7 दिन लागू रहेंगे। तंदूर, दूध और डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल और फूड आउटलेट्स को शाम 7 बजे से रात 11:30 तक डिनर सर्विसेज की इजाजत दी गई है, जबकि होम डिलीवरी और टेक अवे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। एलामे के मुताबिक शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को तकरीबात के इनेकाद की इजाजत रात 8 बजे से 12 बजे तक दी गई है। हुकूमत सिंध ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि वो सिंध पुलिस के ताउन से इन अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा है कि मुल्क और सूबे दोनों की तरक्की और खुशहाली में तमाम शहरियों का यकसां किरदार है। उन्होंने ये बात गवर्नर हाउस क्वेटा में ईस्टर की तकरीबात के सिलसिले में एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को आइन के तहत मसावी हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी गई है। जाफर खान मंदोखेल ने बलूचिस्तान में बिलखुसूस तालीम और सेहत के शोबों में मसीही बरादरी की गिरां कदर खिदमात को भी सराहा। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने बल्कान में अमन को आगे बढ़ाने के लिए मुस्तक़िल मुज़ाकरात पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान बल्कान में अमन और इस्तेहकाम की दायमी ख्वाहिश रखता है और खित्ते के तमाम लोगों की फलाह बहबूद, खुशहाली और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय काबिज हुक्काम ने गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मसला कश्मीर के हल के हक में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ बोलने वालों को भारतीय हुकूमत मुख्तलिफ झूठे और गैर संजीदा मुजरिमाना मुकदमात में फंसाती है। भारत में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमाओं ने मोदी की डिप्लोमेसी को तसव्वुरी, मजाक, नाकाम और कमजोर करार दिया है। भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ संजय जाह ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत शदीद नाकामी का शिकार है, जबकि पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान मरकजी हैसियत इख्तियार करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। इजरायली हुकाम जिंदगी बचाने वाली तिब्बी और इंसानी इमदाद की गजा में फलस्तीनियों तक रसाई में मुसलसल रुकावटें और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फलस्तीनियों के लिए तिब्बी इमदाद नामी इमदादी तंजीम के मुताबिक इसराइल की नाकाबंदी का मतलब यह है कि गजा में हस्पताल और दीगर मराकज़ सेहत बराए नाम सहूलियात के साथ काम कर रहे हैं। निस्फ से ज़ायद ज़रूरी अद्वियात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं और कैंसर की 64% अद्वियात दस्तयाब नहीं हैं। लबनान में इसराइल के हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 303 हो गई है, जबकि 1150 अफराद जख्मी हुए हैं। लबनानी वजारत सेहत ने कहा कि हलाक शुदगान में कम से कम 110 बच्चे, खवातीन और मुअम्मर अफराद शामिल हैं। धमाके की वजह से इमारतों के कई हिस्से मुनहदिम होने से लोगों पर उनका मलबा गिरा, जिसके बायस वो हलाक और जख्मी हुए। मलबा गिरने से उनकी हड्डियां टूटी और सरों पर शदीद नौयत की चोटें आईं। रूस और यूक्रेन ने इस हफ्ते के आखिर में ईस्टर के मौके पर जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग बंदी का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने फौजियों को इस हफ्ते के आखिर में मुकम्मल फायर बंदी का हुक्म दिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि यूक्रेन हम आहंगी के इक़दामात के लिए तैयार है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें।
खेलों में बात सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची में रावलपिंडीज के खिलाफ कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अब से कुछ देर पहले तक 16 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बनाए थे। इससे कबल रावलपिंडीज ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे की खवातीन टीम तीन वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल 6 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज में शिरकत के लिए पाकिस्तान का पहला दौरा करेगी। पीसीबी के मुताबिक तमाम 6 मैचेस कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे की टीम रवां माह की 29 तारीख को कराची पहुंचेगी। वनडे अगले माह की 3, 6 और 9 तारीख को खेले जाएंगे। तीनों वनडे आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2025-29 का हिस्सा हैं। T20 सीरीज वनडे सीरीज के बाद होगी और अगले माह की 12, 14 और 15 तारीख को इसी मकाम पर खेली जाएगी। पाकिस्तान की खवातीन की कौमी फुटबॉल टीम ने कोट डिवायर में तुर्क और क्याकोस आइलैंड्स को 8-0 से शिकस्त देकर फीफा सीरीज को 2026 का कामयाब आगाज किया। ये मुल्क की बैनुल-अक़वामी फुटबॉल की तारीख में पहले की तरह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले पाकिस्तान ने 2022 में मालदीव को 7-0 से शिकस्त दी थी। आइवरी कोस्ट के आबिदजान शहर में खेलते हुए पाकिस्तान को शुरू से आखिर तक बरतरी हासिल रही और उसने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये कामयाबी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का एक बेहतरीन आगाज है और टूर्नामेंट में बड़ी कामयाबी की उम्मीद के साथ स्क्वाड के एतमाद को मजबूत करती है। पाकिस्तान का अगला मैच इतवार को मॉरितानिया के साथ और फिर जुमेरात को इसका मुकाबला मेजबान कोट d'Ivoire से होगा। आईटीएफ पाकिस्तान की तीसरी ज़ैनब अली नकवी मेमोरियल वर्ल्ड जूनियर्स टेनिस चैंपियनशिप 2026 इस्लामाबाद में जारी है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान, काजाकिस्तान, सिंगापुर, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, पोलैंड, जनूबी कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, हांगकांग और थाईलैंड समेत 14 ममालिक के कुल 24 लड़के और 15 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। ये थी इस वक्त तक की खेलों की खबरें और अब आपको लिए चलते हैं तिजारती खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि गुज़श्ता कारोबारी दिन 1,65,517 पॉइंट से जायद पर बंद हुआ था। मजमूई तिजारती हजम 875 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 888 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज बीओ पंजाब कंपनी के सबसे ज्यादा 61 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 487 कंपनी के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 358 कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 101 में कमी, जबकि 28 कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 669 रुपये 45 पैसे का इजाफा, जबकि सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 108 रुपये 74 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 90 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपये 40 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 374 रुपये 45 पैसे और 375 रुपये 12 पैसे। यूरो 326 रुपये 71 पैसे और 327 रुपये 30 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 32 पैसे और 74 रुपये 46 पैसे। यूएई दिरहम 75 रुपये 45 पैसे और 76 रुपये 59 पैसे। और जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपया 75 पैसे और कीमत फरोख्त 1 रुपया 76 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,26,664 रुपये रही और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,64,787 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 52,782 मीट्रिक टन बरामदी और 1,12,005 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। पाकिस्तानी सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियात और फनकारों ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर खुशी और फख्र का इजहार किया है। जब दुनिया एक तबाहकुन जंग का सामना कर रही थी तो पाकिस्तान की कामयाबी ने फनकारों को हुकूमत और अस्करी क़यादत की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। अदाकारा माहिरा खान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया भर के पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के किरदार पर फख्र है।
गुलकार फरहान सईद ने इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती फतह करार देते हुए इसे खित्ते और दुनिया के लिए बड़ा रिलीफ करार दिया। अदाकार एजाज असलम ने इस कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। मीरा सेठी, शाइस्ता लोधी, अदील हुसैन और दीगर ने भी इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत के किरदार को सराहा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने मारूफ शायर मुनीर नियाजी को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए हसीना मोइन हॉल में मुनीर नियाजी की याद में के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसकी सदारत मुमताज शायरा ज़ोहरा निगाह ने की, जिसमें अदबी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़ोहरा निगाह ने अपने सदारती खिताब में कहा कि मुनीर नियाजी उर्दू अदब के अहम तरीन शायरों में से एक थे और रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी शायरी ने अपने पूरे कैरियर में एक मखसूस उसलूब बरकरार रखा और उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में यकसा महारत के साथ बड़े पैमाने पर लिखा। फन की दुनिया से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया की जानिब। 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद इंसानों को चांद पर लाने वाला आर्टेमिस 2 मिशन कल जमीन पर वापस आएगा। दिसंबर 1972 के बाद ये पहला मौका था कि जब खलाबाज जमीन के निचले मदार को छोड़कर चांद के मदार में दाखिल हुए थे। ओरियन कैप्सूल में मौजूद 4 खलाबाजों ने 2,52,000 मील से ज्यादा का फासला तय किया है। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा के एक साबिक मुलाजिम को फेसबुक से निजी तस्वीर डाउनलोड करने के इल्जाम में तहकीकात का सामना है। लंदन में मुकीम इंजीनियर पर इल्जाम है कि उसने एक प्रोग्राम डिजाइन किया था जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी चेक्स को नजरअंदाज करके लोगों की निजी तस्वीर तक रसाई हासिल कर सकता था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट के एक माहिर जासूस ने फेसबुक सारिफीन की प्राइवेसी के मुबैना खिलाफ वर्जी के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी है। मेटा ने तस्दीक की कि यह खिलाफ वर्जी 1 साल से ज्यादा अरसा कबल सामने आई थी, जिसके बाद कंपनी ने मामला बरतानिया में पुलिस को भेज दिया। टेक्नोलॉजी कंपनी का मजीद कहना था कि फेसबुक सारिफीन को बताया गया है कि मुलजिम को नौकरी से निकाल दिया गया है और प्लेटफॉर्म के सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपग्रेड कर दिया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सालेह से। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन इस वक्त शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, ज़री खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश हो रही है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, ज़री खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। आज के रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत छोर मिट्टी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडो जाम और ठट्टा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर अहम शहर जैसे कि इस्लामाबाद में 27, मरी में 18, लाहौर में 30, कराची में 36, पेशावर में 27, क्वेटा में 20, मुजफ्फराबाद में 30, गिलगित में 26, स्कर्दू, अनंतनाग और शोपिया में 19 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। इस्लामाबाद आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम तारीख मुज़ाकरात की मेजबानी को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म ने आज फ्रांस और नीदरलैंड्स के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जंगबंदी के बाद इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेजबानी पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक ममालिक के मंदोबीन और सहाफ़ियों को वीज़े के बगैर सफ़र की सहूलत फराहम की है। और पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडी के दरमियान मैच कराची में जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क जवाद असगर चौधरी।
न्यूज प्रोड्यूसर तारिक महमूद आवान, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरानी आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा मुकम्मल हुआ। अपनी न्यूज टीम के हमरा आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।